Good morning, dear student. I hope and I am sure that all of you are enjoying at your home, and by staying home, you are just supporting your parents, your society, and your nation as well. And being the teacher, we also providing you study material online so that you can continue your study in such environment. Today, I am going to start your lesson number 7, packing. This is written by Jerome K. Jerome. This is very humorous chapter. The chapter packing is taken from the novel Three Men in a Boat. It is an extract of a novel, and the novel name is Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. The story is about the art of packing. The chapter is about a humorous incident which happened when the narrator and his other two friends were packing for a boat trip. बोट ट्रिप पर जाने के लिए जब नरेटर जो है ही इज द राइटर ऑफ द लेसन, वो अपने दो फ्रेंड के साथ में जब पैकिंग करता है तो उसके उस समय कैसे ह्यूमरस इंसिडेंट्स होती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है. Overall, there are four main characters in this story. Jerome is the narrator who considers himself to be the master of packing. Jerome ये जानता है, ये मानता है कि वो master of packing है. किसी भी तरह की पैकिंग हो उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता. Second one is Mr. Harris, a friend of the narrator who irritates him by raising his legs on the table when the narrator was packing the bag. उसका जो मित्र है हैरिस, वो नरेटर को इरिटेट करता है. जब वो पैकिंग कर रहा होता है जीरोम, तो उस समय वो टेबल पर अपनी पैर रखकर बैठ जाता है. ये शो करता है कि आई एम केयर फ्री. थर्ड वन इज जॉर्ज, another friend of the narrator who sat on a chair while the narrator was packing the bag. तो जीरोम के दो फ्रेंड हैरिस और जॉर्ज. नंबर 4 पर है Montmorency. He was a pet dog of the narrator. He irritated George and Harris by sitting on things that were to be packed. He was chased down by Harris. तो एक डॉग और तीन फ्रेंड की स्टोरी है. तो थ्री मैन इन ए बोट, दैट्स द नेम ऑफ द नोवेल, एंड दिस lesson is an extract from that novel. So now I start for the summary of the lesson. The narrator of the story, Jerome, was proud of his packing skills. Jerome को अपने packing skills पर बहुत proud था. He was supposed to go on a trip with his friends George and Harris. एक बार वो अपने friends George and Harris के साथ में एक ट्रिप पर जाने का प्लान करता है. Actually packing skill वास्तव में हर एक के पास नहीं होती. आप देखते होंगे जब फैमिली ट्रिप जाती है तो उस समय पूरे सामान की पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का एक या दो बंदे उठाते हैं केवल. क्यों? क्योंकि इट इज कंसीडर्ड दैट दे आर द मोस्ट सिंसियर पर्सन ऑफ द फैमिली एंड दे कैन मैनेज एवरीथिंग इन ए वेल मैनर्स. तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक या दो लोगों के समय आती है और वो हर चीज को पैकिंग करते हैं. So he told them to leave the whole matter of packing to himself. चूंकि जीरोम अपने आप को परफेक्ट मानता था, इसलिए उसने दोनों फ्रेंड्स से कह दिया कि पैकिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी वो उसके ऊपर छोड़ दें. टू विच दे रेडिली एग्रीड. दोनों फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस इस बात पर तुरंत रेडी हो गए. बोले अच्छी बात है, पैकिंग में ज़्यादा हेडेक होती है, ये अपना संभाल लेगा. George sat on the easy chair and Harris cocked his legs on the table and watched Jerome do the packing. जॉर्ज इजी चेयर पर आराम से बैठ गया और हैरिस ने अपने लेग्स को टेबल पर रखा. वो दोनों जीरोम को पैकिंग करते हुए देख रहे थे. बट दिस वाजंट व्हाट जीरोम वांटेड. लेकिन जीरोम ये तो नहीं चाहता था ना कि वो अकेला काम करता रहे और वो दोनों मजे से देखते रहे. When he said that he wanted to do all the packing himself,
What he meant was that he was willing to be in charge of everything and direct his friends to work efficiently under his supervision. तो वो इस बात से बहुत दुखी होता है और उनसे कहता है कि ठीक है, मैंने अगर पैकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों मेरा सुपरविजन करोगे केवल। He was really pissed at them for just sitting about watching him work. वो वास्तव में बहुत ज़्यादा गुस्से में था, चिढ़ा हुआ था उन दोनों को अपना काम करते देखकर। It was uncomfortable for Jerome to just sit idle. वास्तव में जेरोम को खाली बैठना, आइडल बैठना पसंद नहीं था, अनकंफर्टेबल लग रहा था उसके लिए। एंड सी अनदर पर्सन वर्क अलोन, और उसमें भी ये कि दूसरा व्यक्ति अकेला काम कर रहा हो और हम बैठे रहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। Nowadays, as the whole family is staying at home, so it's the responsibility of each and every person to pass the time enjoyable. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किचन का सारा काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मदर की है, सारे कपड़े धोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मदर की है, पूरे घर की सफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल मदर की है। इट्स नॉट फेयर, इट्स ए टीम वर्क एंड वी शुड सपोर्ट, वी शुड कोऑपरेट आवर मदर एट द टाइम। हम मदर को कितना कोऑपरेट कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। अगर मदर किचन में बिजी है तो क्या हम घर को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं? क्या हम आज हमारे पास में पूरा टाइम है, क्या हम अपने कपड़ों को खुद धो सकते हैं? ये हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी सारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर डिपेंड करती है? इट्स रॉन्ग। बीइंग ए सिंसियर स्टूडेंट, बीइंग ए सिंसियर सन, वी शुड केयर आवर मदर, वी शुड केयर द फैमिली। हम कितना सपोर्ट कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए कि मदर सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअसली सारा वर्क करती है। क्या हम अपना लंच, अपना डिनर खुद सेल्फ सर्विस से ले सकते हैं? क्या हम अपने काम को खुद कर सकते हैं? वी शुड थिंक अबाउट दैट। तो जीरोम के मन में बस ये बात थी कि वो अकेला सारा काम कर रहा है और उसके फ्रेंड उसे बैठकर देख रहे हैं। When Jerome packed the bag, Harris pointed out that Jerome had forgotten to pack the boots. जब जेरोम ने सारी पैकिंग कर दी, सारे बैग पैक कर दिए, तो हैरिस ने उससे कहा कि तुमने बूट्स को तो पैक करना भूल ही गए, जूतों को पैक करना तुम भूल गए। सो ही हैड टू ओपन द बैग अगेन। अब बेचारे जेरोम को दोबारा से बैग सारे ओपन करने पड़े और उससे फिर उन बूट्स को दोबारा पैक करना पड़ा। एंड जस्ट ही वाज गोइंग टू क्लोज इट, और जब वो सारे पैकिंग को दोबारा से क्लोज करने वाला था, ही डाउटेड, उसे डाउट हुआ, उसे शक हुआ, इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश, कि क्या उसने अपना टूथब्रश पैक कर दिया है। जेरोम इस मामले में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता था। Whenever he would be about to travel, जब भी उसे कहीं यात्रा करनी होती थी, he would get nightmares of forgetting to pack his toothbrush. तो उसे डरावने सपने आते थे कि वो अपना टूथब्रश तो ले जाना भूल ही गया है। Then he would wake up and go on to hunt for it. उसके बाद क्या होता था, वो तभी जाग जाता था और फिर अपने टूथब्रश को सर्च करता था। Then in the morning he would pack it before he used it. और फिर मॉर्निंग में as soon as he wake up, ज्यों ही वो उठता था त्यों ही सबसे पहले टूथब्रश को बिना प्रयोग करे ही पैकिंग कर देता था। Then he had to unpack again to get it. लेकिन फिर जब उसे ब्रश करना होता था तो फिर उसको अनपैक करता था और फिर उसे रीपैक कर देता था। Forgetting to put the toothbrush in again, और फिर भी वो भूल जाता था उसको पैक करने में। Then he had to rush upstairs to fetch it, और फिर वो क्या करता था, तुरंत ऊपर सीढ़ियों पर भागता था उसे fetch means to bring, लाने के लिए। He always ends up carrying the toothbrush wrapped up in his pocket handkerchief. और हमेशा वो अपने टूथब्रश को पैक कर लेता था अपने पॉकेट हैंकी में, हैंकी में पैक करके रख लेता था अपनी जेब में। As usual, Jerome had to search the whole bag. चूंकि जेरोम को सारा बैग
सर्च करना पड़ता था। ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस टूथब्रशेस 18 टाइम्स ओवर। उसने 18 टाइम्स 18 बार जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश को देखा, सर्च किया, बट ही कुडंट फाइंड हिज ओन टूथब्रश, लेकिन उसे अपना टूथब्रश नहीं मिला। एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड ए बूट। आखिर में उसे एक बूट के अंदर अपना टूथब्रश मिला, एंड ही हैड टू रीपैक वंस मोर। इसलिए उसे फिर एक बार से पैकिंग करनी पड़ी। आफ्टर ही वाज डन, जब वो कर चुका, जॉर्ज आस्क्ड हिम इफ द सोप वाज इन। तो उसने जॉर्ज ने फिर पूछा, भाई क्या तुमने साबुन तो रख दिया है? लेकिन जेरोम वाज सो एक्सहाउस्टेड, एक्सहाउस्टेड मीन टायर्ड, लेकिन जेरोम इतना टायर्ड हो चुका था, इतना थक गया था, दैट ही जस्ट डिडंट सीम टू केयर, कि उसके बस की नहीं थी कि वो दोबारा उसे देख सके। But after he strapped the bag again, he noticed that he had packed his spectacles inside. लेकिन जब उसने बैग को फिर से स्ट्रैप किया तो उसे ध्यान आया कि उसने अपने स्पेक्टिकल्स, अपने स्पेक्स, अपना चश्मा तो अंदर ही पैक कर दिया है। इसलिए फिर उसे ओपन द बैग अगेन, फिर उसे बैग ओपन करना पड़ा। तो एक सपोज कीजिए कि मिस्टर जेरोम कंसीडर्ड हिमसेल्फ परफेक्ट इन पैकिंग स्किल्स, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो इट वाज नथिंग बट ह्यूमरस थिंग ओनली, कुछ नहीं है कि कितनी बार उसको बैग अपना रीओपन करना पड़ा कि ये चीज मैंने उसमें रखी या नहीं रखी, ये शो कर रहा है इसमें। आफ्टर ही वाज डन, तो उसको अपना वो मिल गया था। He had to open the bag again. Finally, he finished packing at 10:05 p.m. and now George and Harry decided to pack the food hampers. जब उसने अपनी पैकिंग को फिनिश किया रात को 10 बजे करीब, तब जॉर्ज और हैरिस ने निश्चय किया कि अब वो अपना खाने पीने के सामान को पैक करेंगे। वो जिम्मेदारी उन दोनों ने अपने ऊपर ली। George and Harris started by showing that they were better than Jerome at packing. जॉर्ज और हैरिस की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके एक्शन थे, वो ये शो कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि वो जेरोम से ज़्यादा अच्छी पैकिंग कर सकते हैं। जेरोम वाज एक्साइटेड टू सी हाउ दे वुड प्रोसीड। जेरोम केवल ये देख रहा था उत्साहित होकर कि वो कैसे काम करते हैं। एज ही एंटिसिपेटेड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग ए कप। जैसे उसका अनुमान था, उस हिसाब से उन्होंने शुरुआत क्या करी। सबसे पहले कप गिर गया, गिरकर टूट गया, ये उनकी शुरुआत थी। देन हैरिस एक्सीडेंटली स्क्वेज्ड ए टोमेटो by placing strawberry jam on top of it, and then he had to pick out the tomato with a teaspoon. उसके बाद हैरिस ने क्या करा भाई, हैरिस ने जो स्ट्रॉबेरी जैम को रख रहा था, तो स्क्वेज्ड टोमेटो, जो टोमेटो उसने रखे थे उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया, उससे क्या हुआ, सारे स्क्वैश हो गए, सारे स्मैश्ड हो गए। और फिर उसने क्या करा, उन टोमेटोज को निकालने के लिए टीस्पून का प्रयोग करने लगा। तो सारी चीजें एकदम कैसी होती जा रही, हौच पौच हो रहा था। मोर ओवर, जॉर्ज स्टेप्ड ऑन द बटर। Now it was Jerome's turn to sit back and watch them, which irritated them. अब बारी थी जेरोम की। वो आराम से बैठ गया और उनको ये देखने लगा, उन्हें इरिटेट करने लगा, उनको चिढ़ाने लगा, तो उन्हें टेंशन होने लगी कि ये हमें क्यों देख रहा है। They stepped on things, put things behind them, and then they were unable to find them when they needed them. वो एक एक करके सारी चीजों को लाते जा रहे थे और उन सारी चीजों को अपनी बैक साइड में रखते जा रहे थे, इसलिए जब जो चीज उन्हें चाहिए होती थी वो उनको मिल ही नहीं पाती थी। They put the pie at the bottom and put heavy things on top of it. छोटी छोटी चीजों को तो उन्होंने पहले रख दिया नीचे बॉटम पर, और जो हैवी चीज थी, हैवी थिंग्स थी, उन्हें उन सॉफ्ट चीजों के ऊपर उन्होंने रख दिया। which ended up ruining the pies. As a result क्या हुआ, जो pies थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई, सब स्मैश हो गई, सब बेकार हो गई। They poured salt all over the place and did wonders with the butter.
उन्होंने क्या करा कि सारे साल्ट को पोर कर दिया, उस पर डाल दिया और डिड वंडर्स विद द बटर, और साथ में बटर भी कर दिया ऐसे ही, तो सारा मैशअप हो गया। जॉर्ज गॉट द बटर स्टक टू हिज स्लीपर, और जॉर्ज की क्या हालत हुई, जो बटर था वो उसके सारे स्लीपर्स में चिपक गया। आफ्टर ही गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब उसने अपने स्लीपर से वो सब साफ कर दिया, दे अटेम्प्टेड टू पुट इट इन द केटल बट इट वुड नॉट गो इन, तो उन्होंने सोचा कि लाओ इसे किसी केटल के अंदर कर देते हैं, लेकिन वो केटल में अंदर जाने लायक ही नहीं बचा था। Then they put it down on a chair, but Harris sat on it and the butter stuck to his back. उसके लिए बाद उन्होंने करा कि उन्होंने उस चेयर के पास में उस बटर को रख दिया, लेकिन काम करते करते हैरिस भूल गया और वो उस बटर पर बैठ गया जाकर, तो सारा बटर उसकी बैक से चिपक गया, स्टक हो गया। देन दे वेंट अराउंड लुकिंग फॉर इट, अब वो उसके बाद उसको सर्च कर रहे थे कि बटर कहाँ है। After a lot of searching, George discovered that it was at the back of Harris. बहुत देर तक सर्च करने के बाद जॉर्ज ने ये खोजा कि अरे बटर तो सारा हैरिस की बैग पर लगा हुआ है। द होल टाइम एंड फाइनली दे पैक्ड इट इन द टी पॉट, और आखिर में उन्होंने बटर को टी पॉट में पैक कर दिया। कितना एक फनी जोक बना हुआ था उनकी जो पैकिंग थी कि हाउ वर दे मेकिंग दिस एक्ट, एंड देन देयर पेट डॉग, उसके बाद बारी थी उनके जो पेट डॉग था मॉन्टमोरेंसी, वो आया और इनटू द सीन ओनली टू ऐड टू द कॉन्सर्न। Montmorency was a naughty dog whose aim in life was to create hurdles, hurdles कहते हैं रुकावट, disturbance। उसका के उस डॉगी का केवल एक ही काम था कि किसी भी तरह से हर्डल्स को क्रिएट करना, मीन्स प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स डेवलप करनी चाहिए, एंड गेट स्कोल्डेड, और उसकी डांट पड़नी चाहिए, वो ये चाहता था और कुछ नहीं चाहता था डॉगी उनका। It was only when he was screamed at that he felt that his day had not been wasted. So just to when things were ready to be packed, जब सारा सामान तैयार हो गया पैकिंग करने के लिए, he came into the room and sat on them, तो वो सामान के ऊपर आकर बैठ गया। Whenever Harris or George extended their hand for anything, Montmorency made it a point that they reach for his nose. He put his leg into the jam, disorganized the teaspoons and hampered the lemons. उस डॉगी ने हर चीज को हौस पौस कर दिया, डिसऑर्गेनाइज कर दिया उसने हर चीज के लिए, सब चीज उसने बेकार कर दी। आफ्टर अनकाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मीन्स हर्डल्स, रुकावटें, अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स के बाद एंड ट्रिमेंडस एफर्ट, ट्रिमेंडस मीन्स ए लॉट ऑफ, और बहुत सारे एफर्ट्स के बाद फाइनली द पैकिंग वाज डन एट 12:50, रात को 1 बजे पैकिंग कंप्लीट हो गई। हैरी सैट ऑन द हैम्पर होपिंग दैट नथिंग वाज ब्रोकन, अब हैरिस ने ये सोचा कि जो उसने हैम्पर को पैक किया है उस पर बैठकर देखता हूँ कि कुछ टूटा तो नहीं है। George consoled himself and Harris by saying that if anything was found broken, then it would be because it was already broken. उनका क्या सॉल्यूशन था, निष्कर्ष का निकाला उन्होंने कि अगर कोई भी चीज इसमें हमें टूटी हुई मिली तो इट मीन्स ये कि वो चीज पहले से ही टूटी हुई थी, हमने किसी चीज को नहीं तोड़ा, ये उनकी अपनी थ्योरी थी। They all were ready for bed and decided to wake up at 6:30. अब वो बेड पर सोने के लिए तैयार थे और उन्होंने निश्चय किया था कि सुबह ही 6:30 बजे सब सोकर उठ जाएंगे। जॉर्ज वॉज ऑलरेडी asleep by then. जॉर्ज तो पहले ही सो चुका था। So George and Jerome played the bath where he could tumble into on getting up in the morning and went to bed themselves. Now question and answer. First question is, how many characters are there in the narrative? Name them. So there are total 4 characters: Jerome, his friend George and Harris, and a dog. Next question, why did the narrator volunteer to do the packing? Volunteer means self, self motivate क्यों था वो
पैकिंग करने के लिए। तो जेरोम वाज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स एंड सो ही ऑफर्ड टू डू द पैकिंग। एक्चुअली ही डिड नॉट इंटेंड टू डू द पैकिंग वर्क बट ही वांटेड टू सुपरवाइज हिज फ्रेंड्स एंड डायरेक्ट देम टू पैक द राइट वे। रियल में क्या था कि जेरोम चाहता था कि वो वास्तव में कुछ ना करे, उसके दोनों फ्रेंड पैकिंग करें और उन्हें डायरेक्शन दे। इसलिए उसने कहा कि आई विल डू इट माई सेल्फ। लेकिन दोनों फ्रेंड भी उसके महा निकम्मे निकले। How did George and Harris react to this? Did Jerome like the reaction? जॉर्ज और हैरिस ने किस तरह से रिएक्ट किया और क्या जेरोम को उनका रिएक्शन पसंद आया? तो जॉर्ज एंड हैरिस readily agreed to Jerome's plan. They sat on the sofa and the chair respectively and watched Jerome do the packing. उन्होंने कुछ नहीं किया, बोले if you want you can. बस, तो उसने छोड़ दिया, बोले तुम करना चाहते हो तुम ही करते रहो, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। What was Jerome's real intention when he offered to pack? Jerome did not intend to do the packing work, but he wanted to supervise his friends and direct them to pack the right way. What did Harry say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? After the bag was shut and strapped, जब बैग को पूरा बंद कर दिया गया था, Harris pointed out that Jerome had forgotten to pack his boots. I think that he waited till then because he thought that Jerome would pack the boots in the end. तो वास्तव में इसके पीछे पर्पस क्या था हैरिस का, कि वो सोच रहा था कि जेरोम जो है बूट्स को सबसे लास्ट में ही पैक करेगा। उन्होंने वेट किया और जब उसने पैकिंग सब ऑफ कर दी तो उन्होंने उसको कहा। What horrible idea occurred to Jerome a little later. बाद में जेरोम के दिमाग में कौन सा हॉरिबल भयानक आइडिया आया? The horrible idea that struck Jerome was that whether he had packed his toothbrush or not. सबसे भयानक आइडिया था उसका टूथब्रश उसने रखा या नहीं। और जब ये कंफ्यूजन दिमाग में बढ़ जाता है ना कि ये हुआ या नहीं हुआ, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसने पैकिंग को ओपन करने के बाद 18 टाइम्स 18 बार उसने उन दोनों के टूथब्रश को देख लिया कि ये मेरा तो नहीं है। पूरी पैकिंग को उसने ओपन किया और उसके बाद में तब उसका जो मिला वो किसमें मिला था? एक बूट के अंदर रखा हुआ था। ये शो करता है कि हम कितने सिंसियर होकर वर्क करते हैं। Where did Jerome finally find the toothbrush? Answer is already given. Why did Jerome have to reopen the packed bag? उस पैक्ड बैग को क्यों खोलना पड़ा? क्यों खोलना पड़ा था? क्योंकि उसके जो स्पेक्स थे, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स जो थे वो उसने अंदर पैक कर दिए थे, जबकि विदाउट स्पेक्स इट वाज नॉट पॉसिबल टू वर्क एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई ही हैड टू रीओपन द बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? जॉर्ज और हैरिस ने किस चीज को पैक करने के लिए कहा और क्यों कहा? George and Harris offered to pack the food baskets. They did so because they wanted to show that they were better packers than George. दोनों ने फूड बास्केट को पैक करने के लिए इसलिए कहा, वो ये शो करना चाहते थे कि हम दोनों जेरोम से अच्छे पैकर्स हैं, हम ज़्यादा अच्छी पैकिंग कर सकते हैं। So these are all the questions based on the lesson. It's really a very funny and full of joyful and humorous incident. The lesson is full of humorous incident, so it gives immense pleasure for the readers. And but on the basis of such a lesson, readers can find out a lesson. एक चीज तो सीख सकते हैं जब हम पढ़ते हैं इन चीजों को, कि वास्तव में हमें लाइफ में कहाँ पर मिस्टेक करनी है और कहाँ नहीं करनी है। कभी भी किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वी शुड डेवलप ए टीम वर्क। हमें एक टीम वर्क डेवलप करना चाहिए। अगर टीम वर्क होगा तो उस काम को करने में मजा भी आएगा और एक पर्सन, केवल एक व्यक्ति पर सारा बोझ नहीं पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, इट्स माय अपील, इट्स माय सजेशन कि इस क्वारंटाइन पीरियड में जब हम सब अपने अपने घरों में कैद हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कितना सपोर्ट कर सकते हैं। इफ़ वी आर अनेबल टू सपोर्ट देम, हम ठीक है उन्हें सपोर्ट ना करें,
उनके किसी भी वर्क में हम सपोर्ट ना करें, बट क्या हम अपने काम को, अपनी नीड को सेल्फ कर सकते हैं? जो हमारे काम है वो तो हम खुद कर सकते हैं। क्या हम नहाने के बाद अपने अंडरगारमेंट्स खुद धो सकते हैं? क्या हम अपना लंच डिनर खुद ले सकते हैं? क्या हम अपने यूटेंसिल्स को खुद साफ करके रख सकते हैं? क्या हम अपनी मदर की कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? इन चीज़ों को थोड़ा-सा अगर आप सोचोगे तो डेफ़िनेटली आपको पता चलेगा कि फैमिली होती क्या है। फैमिली का सही मायने में मतलब ही केवल एक ही है कि वी हैव टू केयर वन अनदर। एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर करना ही ये फैमिली वाली फीलिंग होती है। इट शुड बी डेवलप्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेसन आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन। बस हम तो इसी कंक्लूजन पर आए कि इसका सीधा सीधा एक समरी बनी कि वास्तव में एक ये ट्यूनिंग के लिए डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे के लिए कितना कोऑपरेट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, read the lesson carefully, enjoy the lesson carefully, and think positively कि what what can you do and how you can support. These are the two things. And don't forget to note down the answer in your notebook. That is compulsory work. Okay, and have a nice day ahead.